everyone, good morning. Today is Wednesday, it's Wednesday morning, and today we are going on an excursion to Mazatlan. So we will reach in some time to the port, and now we are all ready. Now we are going to have breakfast. So after breakfast, we have to go to the gangway, and there they have arranged a bus for people who are all going to the excursion. So the bus will take us to the places, and then we can go and see. It is like 3 or 3.5 hours too, and then we will be back to the ship. So this is the plan for today, and then after coming, let's see how it goes. So yeah, this is the morning view, beautiful sea. और रोज़ की तरह वही हमारा फिक्स्ड ब्रेकफास्ट था, वेफल्स, फ्रूट्स, बेगल विद क्रीम चीज़, और स्निग्धा ने बनाना खाया। एंड रूम में आए तो एवरीडे की तरह रूम बहुत ही अच्छी सी क्लीन था, एंड एवरीडे वी गेट टू सी वन एनिमल, और आज एक क्यूट लिटिल सा डायनासोर था। और बस बच्चों को रेस्ट रूम्स वगैरह यूज़ करनी थी, वो सब यूज़ करके हम अभी शिप से बाहर आ गए हैं। एंड देन जो टूर गाइड है हम उनसे मिले, टिकट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, हमने रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी प्री बुक कर ली थी। तो बस अभी आया नहीं था, सारा जो ग्रुप है जो उस बस में जाने वाला है वो एक तरफ मतलब इकट्ठे हो रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद बस आई, और बस अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं। और ये डे टूर के लाइक डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप मतलब ये एक्सकर्शंस वगैरह बुक करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान होता है। और बस हम बस में अंदर ऐसे कोई सीटिंग नहीं थी, आप कहाँ भी बैठ सकते हो क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी आपके पास है, तो यू कैन सिट एनीवेयर। तो फ्रंट में विंडो के पास हम बैठे थे, एंड दो पर्सन्स थे, एक लेडी एंड एक मेल और एक फ़ीमेल, वो हमारे टूर गाइड्स थे, काफ़ी अच्छे थे, स्पेनिश से ही हमारे साथ बात कर रहे थे, एंड अगेन इंग्लिश में भी वो अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे थे। सो इट वाज फन। पूरा जो मज़तलान है सिटी के बारे में वो सब बता रहे थे, कैसे हम जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या स्टॉप्स रहेंगी, सिटी के बारे में, और कितना पुराना सिटी है, गांव है, और ये सब, और उनके खुद के बारे में थोड़ा कुछ वो सब बता रहे थे। And Mazatlan started to grow as a commercial port. And because of this entrance of water, that the panorama used revolutionaries, so they went back to their countries. And Mazatlan, from being very wealthy, turns to be a fishing village. Very poor fishing village. 50,000 tons of shrimp every year. Alright, so Mazatlan was a fishing village. And then a Californian, Ulysses George is the name, he came to take advantage to this. I know the nickname, but I won't tell you, alright? Luis and Juan, we're going to be working for you. We're going to show you, and the first stop that we're going to do is a really nice area. It's a nice esplanade where some guys, very brave, very courageous guys, take advantage of a balcony that is one of the cliff and dive from. So the first stop is by the cliff divers. Then we're going to take you to the heart of the city, where the cathedral is, where the marketplace is. Yes, you can take advantage of this authentic part of Mexico from the 1940s, 1950s. वेदर अच्छा था, इट वाज अ सनी डे। तो बस हम गाइड को सुन रहे थे, वो इंग्लिश और स्पेनिश जैसे मैंने कहा दोनों में ही सब बता रहे थे। मज़तलान इज़ अ मैक्सिकन रिजॉर्ट टाउन,
along the Pacific shoreline in the state of Sinaloa. It's renowned for its game fishing and sandy beaches. तो पूरा ये कोस्टल लाइन है, आप देखोगे रास्ते की तरफ पूरा जो पानी है, समुद्र है, ओशन, वो आपको दिखेगा. सो मैनी फिशरमैन्स, बहुत सारे फिशरमैन्स फिशिंग करते हुए, और डिफरेंट डिफरेंट फिशेस के वैरायटीज़ देखने मिलेंगी. छोटे छोटे शॉप्स जो वो सेल कर रहे हैं वो. एंड इट वाज नाइस. और पानी के उस तरफ आप देख रहे होंगे ऐसे बड़े बड़े लाइक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे. और ये एक डॉल्फिन मॉन्यूमेंट है. दिस इज़ अ डॉल्फिन मॉन्यूमेंट वेर यू कैन सी डॉल्फिन जंपिंग आउट into the water, and there is a couple standing. It symbolizes the beginning and the end life balance in addition to respect we should have towards nature. If you don't forget this, you can read perfect Spanish no matter what. The vowel sounds. A, E, I, O, U. If you remember these vowel sounds, you can read perfect Spanish. Very few exceptions like A, Q, U, E. U is mute in this case, but well, we don't want to use any form. A, E, I, O, U. And I'm going to show you that. If you mix out the vowel sounds, it's going to be something different. So let's start with, I need you to translate for me. What am I saying? What did I say when I say buenos días? Buenos días. Good morning, excellent. Buenas tardes. Good afternoon. Thank you. Buenas noches. Excellent. In Mexico, no difference. Good evening, good night. Buenas noches, arrival. Buenas noches, goodbye. All right? And I'm going to play with two vowel sounds for buenas noches. And I know everybody knows this one. Buenos nachos. Yeah? Good nachos. Yeah, chips and beans and salsa. But how about this? Buenas nachas. No? I'm going to translate for you. Buenas nachas means nice behind. Take a look to the monument from here. और बीच के पास में छोटे छोटे ऐसे शॉप्स थे जहाँ पे टॉयज़, हैट्स, बैग्स और जो भी निकनैक चीज़ें हैं वो सब लोग बेच रहे थे. पर वो सब लाइक मैक्सिकन करेंसी जो पेसो है उसमें दे वर सेलिंग. और उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था लाइक ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे डाइवर्स जो है वो डाइव करते हैं, डेयरिंग जंप्स. जो ऊपर का नेचुरल रॉक प्लेटफॉर्म है वहाँ से डायरेक्टली ओशन में जंप करते हैं. और ये फ्री है, लाइक आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है. इट्स फ्री टू वॉच, पर उसके बाद आप उनको चाहे तो कुछ टिप दे सकते हो. ये कुछ ओलास अटलास करके एक बीच है, उसके पास में ये शो होता है. पर जैसे वीडियो में इतना नज़दीक दिखता है उतना है नहीं. हाइट काफ़ी ज़्यादा है जब आप सामने से देखते हो, एंड इट्स लाइक अ रिस्की जॉब. तो वहाँ पे हमने एक दो डाइविंग देखी और वहाँ पे बस थोड़ी देर रुकी थी, एक 5-10 मिनट. तो पूरा वो जो लेन है हम वॉक करके आए. अगर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको निकालनी है तो वो आप ले सकते हो. एंड देन बस अगेन बस हम चढ़ गए थे नेक्स्ट स्टॉप के लिए. तो ऐसे जो मेन अट्रैक्शंस है वहाँ पे बस रुक रही थी, एंड देन वी वर गोइंग टू द नेक्स्ट वन.
इस चर्च का नाम है बेसिलिका कैथेड्रल. It's a grand Catholic church known for its intricate details and rich history. The architecture of the basilica reflects different historical periods, showcasing the city's diverse history. Visitors are drawn to the unique blend of Gothic and Moorish design elements in the church. It was built between 1855 and 1894. चर्च के अंदर जाते ही एक अलग ही तरह का एक आपको कामनेस, पीसफुल एक वाइब जो है वो आपको फील होगा. इतना खूबसूरत और प्यारा ये चर्च था. चर्च के अंदर की जो डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग थी इतना खूबसूरत था. एक अलग ही तरह का एक चार्म था. अंदर इतना पुराना चर्च होके भी देयर वाज समथिंग very special about it which made it look so beautiful. मेरा आज तक का मैंने देखा हुआ ये सबसे खूबसूरत और बड़ा चर्च है. It was really mesmerizing. काफ़ी देर तक थोड़ा ज़्यादा मैंने अच्छे से चर्च के अंदर टाइम जो है वो स्पेंड किया. I felt really good. तो चर्च देखने के बाद हम मार्केट घूमने आए थे. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे चर्च में. सच में इट वाज रियली गुड. सो फीलिंग सो हैप्पी. चर्च से बाहर आने के बाद बहुत ही खूबसूरत चर्च था. और बस ये मार्केट जो मुझे पूना में जो तुलसी बाग मार्केट है ना वैसे ही याद आया. एंड मेक्सिको जो है वो थोड़ा थोड़ा इंडिया की तरह है. लोग उन रास्ते और जो स्ट्रीट साइड शॉपिंग वगैरह है, बारगेनिंग, वो सब सेम. इट फील्स लाइक हाउ इट्स इन इंडिया. और ये शेल के बने हुए बहुत अच्छे ना ऐसे लैंटर्न्स थे हैंगिंग से. बहुत क्यूट थे और मैंने एक दो पसंद भी किए थे पर मुझे काफ़ी महंगे लगे. इसलिए मैंने सोचा कि आगे और देखते हैं. बट वापस जाते वक्त मैंने उसी शॉप से वो मैंने एक जो है हैंगिंग जो है वो लिया है. फिर कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. पूरा सारे डिफरेंट टाइप्स के सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, सब आपको A to Z सारे वो लाइक मार्केट जो है उसमें अवेलेबल था. कुछ लोग लाइक US करेंसी में बेच रहे थे. कुछ जो लाइक मेक्सिकन पीसो है उसमें दे रहे थे. सो अगर आपको बार्गेनिंग अच्छी आती है एंड यू नो हाउ टू टॉक स्पेनिश देन आप अच्छे प्राइस में वो उनसे ले सकते हो. और बस उसके बाद फिर एक मॉल जैसा था. वहाँ पे एक्चुअली कुछ ज़्यादा था नहीं. तो वहाँ हम आए थे. वहाँ से बीच कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था. जिनको जाना है वो जाके शोर के पास जाके आ सकते हैं. हम लोग गए नहीं. वी जस्ट वॉकड देयर नियर बाय. और ये मॉल के अंदर एज सच कुछ ज़्यादा शॉप्स थी नहीं. वहाँ पे कुछ क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह लगी थी तो वहाँ पे बस हमने थोड़े पिक्चर्स ली. एंड वहीं पे रोड साइड में हमने थोड़ी सी एक वॉक ली.
और जो हमारा मज़ेटलान का टूर था वो ख़त्म हो गया, हाफ डे टूर ही था। तो अभी हम लाइक बस ने हमें वो ड्रॉपिंग पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया था, हम उतर गए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह है, शॉप्स वगैरह है, आप वो सब देखते हुए क्रॉस करते हुए वहाँ दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ पे ट्रैम्स वगैरह रहेगी विच विल टेक यू टू द क्रूज़। तो बस हमने वहाँ पे ऐसे एसेट शॉपिंग तो की नहीं, पर ऐसे ही शॉप्स देखते हुए ही आपको जाना है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से ना ऐसे स्टोन वर्क की ऐसे आर्टिफैक्ट्स काफ़ी अच्छे थे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की चेन, ड्रेसेस, वो सब यहाँ पे थी। सो सारे ही शॉप्स देखते हुए, अगर कुछ खाने के भी थे, किसी को कुछ खाना होगा तो वो, पर यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी कम थी और स्पेशली वो भी आउटसाइड। तो इसके लिए हमने खाया तो कुछ नहीं, बस हमने पूरा ऐसे शॉप्स की तरफ वॉक करते करते हुए हम लोग बस क्रूज़ की तरफ निकल गए। और ये एक्सकर्सन जाना आना काफ़ी मतलब कंफर्टेबल था। तो क्योंकि बुकिंग्स वगैरह ऑलरेडी की थी, बस वगैरह भी ऑन टाइम थे, गाइड ने सब जगह अच्छे से लेके गए, दिखाया, समझाया। सो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो दोनों इंग्लिश और स्पेनिश में बात कर रहे थे। और क्रूज़ से अगेन स्टॉप तक जाने के लिए और वापस अगेन क्रूज़ तक छोड़ने के लिए ऐसे ट्रैम्स और बसेस वगैरह थी। तो या ओवरऑल इट वाज गुड। Friends, now the time is 2 o'clock and we are done with the excursion. So yeah, we are back in the cruise ship and now we are eating our lunch. So today we have some bean rice, this is mashed potato, this is like veggies in white sauce, and this is some plantain, it's like a raw banana plantain, and then mushroom soup, and here there is pumpkin soup. So yeah, we are all hungry now, so we will eat our lunch. और फिर हमने डेज़र्ट ट्राई की। डेज़र्ट के ऑप्शंस पेस्ट्रीज़ कई तरह के होते थे, तो रोज़ हम लाइक 2-3 अलग अलग पेस्ट्रीज़ लेते थे और हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते थे। और फिर उसके बाद हम रूम में चले गए थे, थोड़ी देर लाइक 1-1.5 आवर हमने लाइक अच्छे से रेस्ट किया। और फिर शाम के टाइम व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट डिनर टाइम, तो डिनर हमने जो है वो टाइम बुक कर लिया था, तो उसका ना 15 मिनट्स पहले आपको मैसेज आ जाता है। तो वहीं पे हम पास में घूम रहे थे, तो वहाँ पे लाइक बच्चों का एक टॉय एरिया था, गेम जोन, तो वहाँ पे हम गए थे जस्ट टू सी हाउ इट इज़। और भी एक तो ऐसे जगह थी जहाँ पे किड्स खेल सकते हैं, इट वाज अकॉर्डिंग टू देयर एज। और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी कुछ चल रहा था। एंड जैसे ही वो मैसेज आता है ना, देन यू हैव टू गो एंड टेक योर सीट। 15 मिनट्स तक वो वेट करते हैं, अगर आप शो अप नहीं करते हैं तो फिर वो आपका जो रिजर्वेशन है ना उस टाइम स्लॉट का डिनर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर मैसेज आया था हमको, तो फिर हम बस डिनर करने चले गए थे। और डिनर में उस दिन राइस था, दाल, सूप, मुझे याद नहीं है कौन सा सूप था, पर सूप अच्छा था। उसके साथ बैंगन और टमाटर की वगैरह सब्जी थी। एंड फिर डेज़र्ट में आइसक्रीम था और एक केक था। सो दिस वाज आवर डिनर फॉर दैट डे। और फिर डिनर के बाद हम रूम चले गए थे। बच्चों को हमने रूम में ड्रॉप किया, दे वर वॉचिंग टीवी, और मैं और हस्बैंड हम बस नीचे आ गए थे। ये एडल्ट जोन एरिया था, तो वो मुझे देखना था, तो हम आए हैं। तो यहाँ पे एक बार है और फिर म्यूज़िक वगैरह थी वहाँ पे, मुझे देखना था, तो बस हम आए। तो ऐसे 2-3 जगह हैं लाइक क्रूज़ में थी जहाँ ओनली अडल्ट्स वर अलाउड। सो इन दैट केस बच्चों को आप वो जो प्ले जोन वगैरह है वहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप रूम में भी छोड़ सकते हो, दे कैन बी बाय देमसेल्फ टीवी वगैरह देखते हुए। या फिर आप सिर्फ कपल ही हो तो फिर नो वरीज़, यू कैन जस्ट गो।
तो बस यही था आज का व्लॉग। तो डे 4 हमने कैसे स्पेंड किया ये मैंने शेयर किया है। बाकी के सारी वीडियोस भी मेरे चैनल में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, दैट वे इट विल बी इजी। सो और 1 या 2 वीडियो पेंडिंग है, वो भी मैं बहुत जल्द इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। वहाँ पे मैं बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह, रील्स डेली कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती हूँ, तो यू कैन चेक मी देयर एज़ वेल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।